Good morning students. How are you? I hope you all are fit and fine. बेटा आप अपने क्लासरूम को अपने स्कूल को मिस कर रहे हो? आज अच्छा लग रहा है ना? आपका ग्रीन बोर्ड, क्लासरूम, मैम भी है आपके सामने. अच्छा लग रहा है? Good. Today we will do revision of lesson 2 parts of a computer. बेटा आज हम चैप्टर 2 के रिवीजन करेंगे. ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. Starting the revision, let's enjoy the animation of chapter 2. Hi Julie, how are you? Hi Andy, I'm fine. How are you? I'm so happy to see you. Yes, me too. It's been such a long time. Come, let's say hi to all our friends. I also want to meet our friend, the computer. Come, let's go to the computer lab first. Oh no, what has happened out here? The computer doesn't look the same. Where are all its parts? Somebody must have removed them while cleaning. But we'll put it back together. But I don't know about the parts of a computer. Don't be sad, Andy. I will tell you. There are 4 main parts of a computer. They are the monitor, mouse, keyboard, and CPU. Some parts are connected to the computer through the CPU. Yes, I know this is a speaker. We can use it to listen to sounds from a computer. Yes, Andy. Do you know if you do not want others to listen to sound from a computer, you can wear these headphones. Then, only you would be able to listen to the sound. Really? Then I will wear the headphones when I'm watching a cartoon. This way, my sister will not get disturbed when she's studying. Andy, this is a headset. It also has a microphone that we can use to record our own sound. Isn't that amazing? Yes, it is. I want to test how I sound. Let's do it. We can do that later, Andy. Right now, let's put these CDs and DVDs in a box. CDs and DVDs are round discs. We can use them to store games, photographs, films, and music. Do you know a DVD can hold more content than a CD? Okay, but how can we use a CD or a DVD? CDs and DVDs are placed in a special device called a CD or DVD drive. The CD or DVD drive is a part of the CPU box. The drive reads the contents on the CD or DVD and plays them for you. Julie, what would happen if electricity goes out? Would the computer still work? If electricity goes out, a UPS, uninterrupted power supply, supplies electricity to the computer. It supplies electricity for a short time so that this time can be used to save the work and shut down the computer. Thank you for telling me all this, Julie. Look, our computer looks so beautiful and happy now. Yes, it does. Now let's go to our classroom. बेटा open your book at page 15. पेज 15 ओपन कीजिए बेटा. चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे हम. देखो बेटा, as you know, computer has 4 main parts. आपको पता है कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस. ठीक है, कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हैं. पर बेटा इन 4 पार्ट्स के अलावा भी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू से वायर्स के साथ अटैच्ड होते हैं. ठीक है, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन. यूपीएस. बेटा यूपीएस हम जब भी राइट करते हैं, यूपीएस के सभी लेटर्स को हम कैपिटल लेटर्स में राइट करते हैं. यूपीएस. हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव. Now, beta open book page 19. We will do the exercise part. ठीक
बेटा आपको एक्सरसाइज पार्ट दिया है, अब हम वो रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके ऑप्शंस गिवन है, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए वीडीडी, बी बीडीयू, सी वीडीयू। सो करेक्ट आंसर इज सी वीडीयू। क्या होता है वीडीयू? बोलो फुल फॉर्म। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हियर साउंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर्ड साउंड को सुनने के लिए बेटा हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? फर्स्ट ए ऑप्शन है बेटा प्रिंटर, बी स्पीकर्स, सी सीपीयू। इन तीनों ऑप्शन में से बेटा हम किसकी हेल्प से कंप्यूटर में स्टोर्ड साउंड को सुन सकते हैं? करेक्ट आंसर इज बी स्पीकर्स। स्पीकर्स। ओके। नंबर 3, अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड अ। पेन ड्राइव को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए फायर ड्राइव, बी फ्लैश, सी फ्लैश ड्राइव। करेक्ट आंसर इज सी फ्लैश ड्राइव। नाउ फोर्थ, विच पार्ट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ऑप्शंस ए सीपीयू, बी डीवीडी, सी हेडफोन्स। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। जबकि आपको पता है ना सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू ही कंप्यूटर के बाकी सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। नाउ बेटा क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे बेटा। इसके लिए आपको बुक में हेल्प बॉक्स भी गिवन है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं सीपीयू, हार्ड कॉपी, यूपीएस, हेडफोन्स। ठीक है। नंबर 1, अ डैश runs the computer for a short while even after a power cut। एक पावर कट के बाद मीन्स अगर लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उसके बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए कौन चला कर रखता है? ऑप्शंस में देखो बेटा, ऑप्शंस आपको दिए ना सीपीयू, हार्ड कॉपी, यूपीएस एंड हेडफोन्स। सो राइट आंसर इज यूपीएस। ठीक है। यूपीएस एक इन्वर्टर की तरह से काम करता है। जैसे इन्वर्टर लाइट के चले जाने पर आपके घर में फैंस, लाइट्स को ऑन रखता है, उसी तरह से यूपीएस भी कंप्यूटर के इन्वर्टर की तरह से काम करता है, जो कंप्यूटर को लाइट के जाने पर कुछ टाइम के लिए ऑन रखता है। ठीक है। सेकेंड है बेटा, द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ डैश। प्रिंटेड कॉपी को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर इज हार्ड कॉपी। थर्ड, डैश आर यूज्ड टू लिसन टू साउंड्स एंड म्यूजिक। साउंड्स और म्यूजिक को सुनने के लिए क्या यूज करते हैं? राइट आंसर इज हेडफोन्स। हेडफोन्स की हेल्प से हम म्यूजिक और सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। नंबर 4, डैश इज इनसाइड अ कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर क्या होता है? राइट आंसर इज सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। बेटा क्वेश्चन सी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। बेटा अब हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके लिए हमें ट्रू के लिए T राइट करना है और फॉल्स के लिए F राइट करेंगे। फर्स्ट इज अ पेन ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर
इंफॉर्मेशन। क्या पेन ड्राइव में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट आंसर इज ट्रू। सेकेंड, अ प्रिंटर इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या प्रिंटर एक पॉइंटिंग डिवाइस है? नो, राइट आंसर इज फॉल्स। नंबर 3, अ माउस हैज 2 buttons and a scroll wheel। क्या माउस के 2 buttons और एक स्क्रोल व्हील होता है? यस, राइट आंसर इज ट्रू। नंबर 4, a standard keyboard has 104 keys। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसकी 104 कीज होती हैं। राइट आंसर इज ट्रू। बेटा क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा, नेम एनी 3 ऑफ देम। बेटा हमें स्टोर और डाटा ट्रांसफर करने वाले डिवाइसेस के नेम बताने हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस को हम डाटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। नेम एनी 3 ऑफ देम, कोई भी 3 डिवाइसेस के नेम बताने हैं। फर्स्ट इज सीडी, सेकेंड डीवीडी, थर्ड इज पेन ड्राइव। नाउ क्वेश्चन 2, नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मॉनिटर, सेकेंड सीपीयू, थर्ड कीबोर्ड एंड फोर्थ माउस। बेटा क्वेश्चन 3, विच कंप्यूटर पार्ट्स हेल्प यू टू लिसन टू साउंड्स। साउंड्स को सुनने के लिए कंप्यूटर के कौन से पार्ट आपको हेल्प करते हैं? किन पार्ट्स की हेल्प से आप साउंड्स को सुन सकते हो? स्पीकर्स एंड हेडफोन्स हेल्प अस टू लिसन टू साउंड्स। स्पीकर्स और हेडफोन्स की हेल्प से आप साउंड्स को सुन सकते हो। Students, now we will do revision of chapter 3, that is operating a computer। अब बेटा हम चैप्टर 3 के रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब बेटा चैप्टर 3 में हमने सबसे पहले क्या किया था? स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। आप बुक में देखो पेज नंबर 22। ठीक है, 22 पर आपको दिया है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के 4 स्टेप्स पढ़े थे ना। कौन कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहले हमें कंप्यूटर को ऑन करने के लिए क्या करना होता है? पावर सप्लाई बटन ऑन करते हैं, देन यूपीएस, देन सीपीयू बॉक्स एंड देन मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आइकन्स, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। आइकन्स क्या होती है? छोटे छोटे पिक्चर्स जो आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देती हैं। दीज आर कॉल्ड आइकन्स। देन टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम में जो सबसे लॉन्ग बार होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। थर्ड, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ होता है? डेस्कटॉप के लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार्ट बटन होता है। उसके बाद बेटा हमने किया था शटिंग डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज क्लिक द स्टार्ट बटन, देन पावर बटन अपीयर्स एंड क्लिक ऑन शट डाउन। उसके बाद हमें शट डाउन पर क्लिक करना होता है। फिर जब तक सीपीयू ऑफ नहीं हो जाता हमें कुछ देर का वेट करना है। देन स्टेप 4, स्विच ऑफ द मॉनिटर। हम मॉनिटर को ऑफ करते हैं, देन यूपीएस को ऑफ करते हैं, देन स्विच ऑफ द पावर सप्लाई बटन। सबसे लास्ट में मेन पावर सप्लाई बटन को ऑफ करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन A,
टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, हम करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द स्क्रीन आफ्टर बूटिंग। बूटिंग के बाद स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देता है? ऑप्शन है बेटा, पेंट, बी डेस्कटॉप, सी नोटपैड। अब सबसे पहले बूटिंग क्या होता है पता है ना आपको? बूटिंग मीन्स जब कंप्यूटर हमारा ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब फर्स्ट स्क्रीन हमारी दिखाई देती है कंप्यूटर पर, उसको हम कहते हैं बूटिंग। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग के बाद सबसे पहले स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? राइट आंसर इज बी डेस्कटॉप। सेकेंड, व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर? यूपीएस से आप क्या समझते हो? मीन्स कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज सी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है? देखो, यू स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड, टी पावर, एस सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाउ नंबर 3, which of the following is not a part of desktop screen? बेटा आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपने बताना है कि डेस्कटॉप स्क्रीन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ए यूपीएस, बी टास्क बार, सी स्टार्ट बटन। ठीक है, राइट आंसर इज यूपीएस। यूपीएस डेस्कटॉप स्क्रीन का पार्ट तो नहीं है। किसका पार्ट है यूपीएस? कंप्यूटर का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा? यूपीएस। नाउ 4, which of the following is the last step to turn on a computer? कंप्यूटर को ऑन करने का सबसे लास्ट स्टेप क्या है? ए स्विच ऑन द मॉनिटर, बी प्रेस द मेन पावर सप्लाई, सी स्विच ऑन द यूपीएस। इन तीनों में से बेटा हम लास्ट में जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? मॉनिटर को ऑन करते हैं ना। तो राइट आंसर क्या है? ए स्विच ऑन द मॉनिटर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपकी बुक में ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? आइकन्स, शटिंग डाउन, इलेक्ट्रॉनिक, टास्क बार। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब हम फिलअप करते हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड, टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज डैश। कंप्यूटर को ऑफ करना क्या कहलाता है? शटिंग डाउन। 3, डैश is a horizontal bar present at the bottom of the desktop. डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम में जो एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बार होती है, उस बार को हम क्या कहते हैं? टास्क बार। नंबर 4, डैश आर द स्मॉल पिक्चर्स और सिंबल्स ऑन द डेस्कटॉप। बेटा डेस्कटॉप पर आपको छोटे छोटे पिक्चर्स, छोटे छोटे आइकन्स दिए हुए होते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स दिए हुए होते हैं। उन सिंबल्स को, उन पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? आइकन्स। ठीक है, क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट के लिए हमें टी राइट करना है और फॉल्स के लिए एफ राइट करेंगे। फर्स्ट इज the process of starting a computer is called booting. क्या कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं? राइट आंसर इज ट्रू। सेकेंड, द टास्क बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम में क्या टास्क बार प्रेजेंट होती है? आपने देखा है ना, डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बार होती है, उस बार को हम क्या कहते हैं? टास्क बार। तो हमारा आंसर क्या होगा?
true. ठीक है. Number 3, you can directly switch off the main power supply button to shut down a computer. कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए क्या आप डायरेक्टली मेन पावर बटन को ऑफ करते हो, कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग मेथड है ना. कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. तो राइट आंसर है हमारा फॉल्स. Number 4, the start button is present at the right corner of the task bar. क्या स्टार्ट बटन टास्क बार के राइट कॉर्नर पर होता है? बताओ. नहीं होता ना. कौन से साइड पर होता है? लेफ्ट साइड पर. तो आंसर इज फॉल्स. नाउ बेटा डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम. आंसर द following questions. First question is, what do you understand by shutting down a computer? कंप्यूटर को शट डाउन करने से आप क्या समझते हो? कंप्यूटर को शट डाउन करना क्या होता है? ठीक है. आंसर इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन. ठीक है. कंप्यूटर को ऑफ करने की प्रोसेस को, ऑफ मीन्स बंद करना. ठीक है. कंप्यूटर को बंद करने की प्रोसेस को हम शट डाउन करना कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 2 देखो बेटा. लिस्ट द पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हमें उनकी लिस्ट बनानी है. फर्स्ट इज आइकन्स. ठीक है. फर्स्ट क्या है? आइकन्स. सेकेंड टास्क बार. टास्क बार. थर्ड स्टार्ट बटन. थर्ड इज स्टार्ट बटन. ठीक है बेटा. नाउ बेटा क्वेश्चन 3 देखो. व्हाट इज द रोल ऑफ यूपीएस इन टर्निंग अ कंप्यूटर ऑन और ऑफ? कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने में यूपीएस का क्या रोल होता है? आंसर है बेटा यूपीएस कीप्स अ कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन आफ्टर अ पावर कट. यूपीएस क्या करता है? कंप्यूटर को कुछ देर के लिए ऑन रखता है अगर लाइट चली जाती है तब भी. ठीक है. यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूपीएस लाइट के जाने पर भी कुछ देर के लिए कंप्यूटर को ऑन रखता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू प्रैक्टिकल वर्क. अब हम बेटा प्रैक्टिकल करेंगे. टुडे वी विल टाइप पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप इन वर्ड पैड. आज बेटा हम वर्ड पैड में डेस्कटॉप के पार्ट्स टाइप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टू ओपन वर्ड पैड. पहले हम वर्ड पैड ओपन करना सीखेंगे. वर्ड पैड ओपन करने के लिए हमें क्या करना है? क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स मैंने आपको बताया है ना, टास्क बार पर सर्च बॉक्स होता है. हम यहाँ पर क्लिक करेंगे. टाइप वर्ड पैड. WORD वर्ड PAD वर्ड पैड. वर्ड पैड appears on the top. अब देखो बेटा सबसे ऊपर आपको वर्ड पैड दिखाई दे रहा है. क्लिक ऑन वर्ड पैड. नाउ वर्ड पैड विंडो appears on the screen. अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? वर्ड पैड विंडो. नाउ वी विल टाइप पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप. बेटा चैप्टर 3 में हमने डेस्कटॉप के 3 पार्ट्स पढ़े हैं ना. अब हम उन पार्ट्स को टाइप करेंगे. ठीक है. अब आपके पास देखो टाइपिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए. अब मैम आपको यहाँ स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखाएंगे. ये देखो हमारा कीबोर्ड आ गया. दिस इज कॉल्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. अब हम फॉन्ट का साइज बेटा चेंज करेंगे.
ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज चेंज करेंगे। आई सेलेक्ट 48। अब बेटा हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे। अगर हमें कोई भी लेटर कैपिटल में टाइप करना है तब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं ना। ओके, अब हम कैप्स लॉक की को हमने ऑन किया एंड पी। अब बाकी लेटर्स हमें स्मॉल चाहिए तो हम कैप्स लॉक की को ऑफ करेंगे। ARTS पार्ट्स। स्पेस बार किस लिए होती है? टू वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए। OF अगेन स्पेस बार की। THE स्पेस बार की। डेस्कटॉप DESKTOP पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप। अब बेटा जब हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, हम नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? विच की इज यूज टू गो टू नेक्स्ट लाइन? एंटर की। वी प्रेस एंटर की। अब देखो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। गुड। नाउ अब हम डेस्कटॉप के पार्ट्स टाइप करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज आइकन्स। आइकन्स के लिए हमें आई कैपिटल टाइप करना है। प्रेस कैप्स लॉक की। आई कैप्स लॉक की को ऑफ करेंगे। CONS आइकन्स। देन प्रेस एंटर की to go to next line. अगेन कैप्स लॉक की ऑन कीजिए। T फिर हम ऑफ करेंगे। ASKBAR टास्क बार। देन प्रेस एंटर की। अब हम टाइप करेंगे स्टार्ट बटन। कैप्स लॉक की ऑन कीजिए। S कैप्स लॉक ऑफ करना है। TART स्टार्ट स्पेस बार BUTTON बटन। इसी तरह से बेटा हम वर्ड पैड में टाइपिंग कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ।